Hi students, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am here for discussing about 11th class concepts. Okay, 11th class chapter. So as I had given the instruction that I am going to start this 11th class studies, 11th class mathematics from 1st July. That's why I am here for giving you the conveniences whatever I have promised to you. Okay, so at first I want to congratulate to each and every students for getting this tremendous success in class 10. Although this exam was not conducted, but the result will be announced on the basis of your school performances, and I think you might have a good score. You might have done good performance, or actually you might have got good marks in class 10th school level exams. So that will impact in your final exam scores. So I am Ovik Roy welcoming you in this new battlefield. Battlefield क्या है रे भाई? Battlefield तो यहाँ पर मतलब क्या यहाँ पर क्या गोली मारने के लिए जाओगे किसी को? ना 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 ना, ये battlefield मतलब just I want to say that for this 2 years your life is fixed. No other thinking, no other extra co-curricular activities, no other actually different things are there. I can't actually list them out. Okay, so different things are there without studies. All of these things, just keep it aside. You should think about your studies only for this 2 years, because in this 2 years, your life will be tracked. Okay, your life will be settled down. Okay, so just remember one thing: only studies. So as I told you that in this motivational speech that I am going to start this new chapter, set, relation and function. तो आज हम लोग कुछ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉपी पेन लो और शुरू करो. ठीक है, ओके. अब बोलोगे सर या माली सर आपने तो ये क्या बोल दिया, ये 2 साल मतलब क्या है? 2 साल, देखिए 2 साल ऐसा कुछ नहीं है. 2 साल आपको सिर्फ पढ़ाई करना है. ठीक है, 2 साल आपको सिर्फ स्टडी करना है. और व्हाट एवर द हेल्प्स आर रिक्वायर्ड, आई एम हियर फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड इन माय सब्जेक्ट. ओके, जस्ट डिस्कस विथ मी, कंसल्ट विथ मी. आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू. ठीक है, तो एनी टाइम जस्ट डिस्कस विथ मी. ठीक है, and my WhatsApp number you can write also, 8473955827. It is my WhatsApp number. If you feel that now I should discuss with our sir, then you can discuss with me in this WhatsApp number. Just tell me your doubt, tell me just whatever you have queries. Okay, तो जैसे कि मैंने बोला था, आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे सेट. व्हाट इज सेट? ठीक है. अब बोलोगे सर ये तो हम लोग के एडवांस मैथ्स में भी था सेट. ठीक है, एडवांस मैथ्स में भी था सेट. उसमें तो हम लोगों ने वी हैड स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग सेट्स. ठीक है, बट बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूँ, सेट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज वेरी 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 बिग थिंग. ओके, डोंट टेक इट लाइटली. ओके, many more concepts, many more things are there in the set part, and I will discuss each and everything, and then you will realize no, what we had got in class 10, it is completely different. Okay, so set is not a very small thing. Those who had this advanced maths in class 10, that is good, that is good for your health. And those who had not the advanced maths in class 10, very good, I appreciated it.
ठीक है। अब एडवांस मैथ जिसका है उसको तो पहले से पता है व्हाट इज सेट, जिसका नहीं है उसको मैं बोलूंगा सेट क्या है। ठीक है, तो वेरी गुड। जिसका एडवांस मैथ में नहीं है, नहीं था, देयर इज वेरी गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, तो मत घबराइए, जिसका एडवांस मैथ्स में नहीं था, मेरा भी नहीं था एडवांस मैथ्स, क्या एडवांस मैथ्स, ठीक है। हाँ, एडवांस मैथ्स जिसका है 11th में, हो सकता है कि ये सेट के बारे में, जो सेट का डेफिनेशन है उनको पहले से पता है, आपको नहीं पता। ठीक है ना, इसको ये बताने के लिए मैं तो हूं ना, मैं बताऊंगा आपको सेट का डेफिनेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा तो एडवांस मैथ्स नहीं था, तो क्लास 11th में ही है, ये साइंस मैथ्स बहुत ये टफ है, कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई मैं बोलता हूं आपको, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन हो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन हो that no, I have to be succeeded in my life. If you have the strong aim, strong goal, then all the hurdles and all these things can be crossed. Okay, can be faced, can be confronted. No problem. All the problems, whatever is actually is arised in front of me in the nearest future, I will confront each and everything because I have a strong determination and what? Strong goal. Okay, fixed aim. ठीक है, और इसके लिए मुझे जो जो करना है मैं करूंगा। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट those students are thinking that no, mathematics is very very tough subject, I will not take this mathematics in class 11. Let me tell you one thing, after some time I am giving you this assurance, mathematics subject is going to be the most interesting subject in your life. It is my assurance. Okay, if you will be going, okay, through my lectures, through my actually through my instructions, different things, okay, just you have to be attached with me every day, then I can give you this assurance that after some time mathematics subject is going to be the most interesting subject in your life. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इट इज माई गारंटी। ठीक है, शुरू करते हैं। लेक्चर तो बहुत हो गया, हाँ ठीक है, ये टीचर का काम ही है लेक्चर देना। ठीक है, कुछ भी नया शुरू करने से पहले लेक्चर दो, मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस। ठीक है, अच्छा, और सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। हाँ, ये लेक्चर शेयर करिए जितना हो सके। हाँ, जिससे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत थोड़ा बूस्ट मिल जाए, बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, थोड़ा ग्रो मिल जाए। ठीक है, ओके, शुरू करते। सेट, सेट एक्चुअली क्या है? सेट है एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये क्या रे भाई? कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड क्या है? ठीक है, ये तो समझ में आ गया, कलेक्शन। ठीक है, कुछ चीज का मुझे कलेक्शन लेना है, मतलब यहाँ से ढूंढ ढूंढ के मुझे एक कलेक्ट करके एक बनाना है, कुछ कलेक्शन बनाना है। तो मीन्स पेन को कलेक्ट करके कुछ पेन का एक कलेक्शन बनाना है। ठीक है, वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब है जो आंखों से तू देख सकती हो, दैट यू कैन सी, यू कैन फील दैट ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ पेन्स, ये पेन, ठीक है, ये पेन, you can feel, you can touch it, you can see it, because this pen is well defined. ठीक है, ठीक है, मोबाइल well defined, book well defined. It means an object at which you can see, you can feel. This type of objects are called what? Well defined. अब भूत, भूतों का सेट होता है क्या? घोस्ट नहीं होता है, बिकॉज घोस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होता है उसका जो कलेक्शन होता है उसी को बोला जाता है सेट, ठीक है। अब सेट को लिखा कैसे जाता है, कैसे उसको समझ में आएगा, हाउ डू आई नो दैट दिस इज अ सेट, हाउ डू आई नो दिस इज सेट, कुछ ना कुछ नोटेशंस, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस तो होगा उसका, ठीक। जैसे ए सेट is defined, a set is defined by ऐसे सेकंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। सो इफ आई टेक द कलेक्शन, ठीक है, मैं कुछ कलेक्शन ले रहा हूं, यहां पर एक कलेक्शन ले रहा हूं नंबर्स का, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक नंबर्स का कलेक्शन। नंबर्स को तो तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो ना नंबर्स को पेपर में, ठीक है। तो आप टच तो कर सकते हैं, दैट मींस यू कैन फील, सो दैट मींस दिस नंबर्स आर वेल डिफाइंड, दैट मींस यू कैन टेक द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। तो ये जो जब भी आप कभी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेंगे उसको बोला जाएगा क्या, सेट, ठीक है। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेकंड ब्रैकेट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। व्हेनेवर जस्ट यू आर राइटिंग द सेट देन यू नीड टू गिव सेकंड ब्रैकेट, विदाउट सेकंड ब्रैकेट कुछ भी ब्रैकेट आप यूज नहीं करते। सर बोलेंगे सर क्यों, मैं यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट यूज करूंगा, थर्ड ब्रैकेट यूज करूंगा, करो, क्रॉस मिलेगा। अब हर एक चीज का एक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक बनावट होता है ऐसे मतलब इंसान को बनाया गया। अब नाक अगर यहां पर हो तुम्हारा और आंख अगर यहां पर हो तो क्या ये मतलब ये फेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाक यहां पर है और आंख दोनों यहां पर है, ठीक है, मुंह यहां पर है, ठीक है ना। तो हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को देख के हम लोगों को लगता है कि नहीं ये इंसान है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर नाक होगा, यहाँ पर आंख है, यहाँ पर मुंह है, तो यू विल कंसिडर दिस थिंग्स एज घोस्ट, देख के भागेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कोई भी एक इंसान का ह्यूमंस का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, आंख यहाँ पर रहेगा, नाक यहाँ पर है, ऐसा। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा हुआ, ये तो तुम उसको जाके पूछो, गॉड को जाके पूछो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखो, नंबर्स का अगर मैं कलेक्शन लूं, ऐसे अगर लिखूं उसको, ठीक है, ऐसे अगर उसको मैं लिखूं, उसको बोला जाता है क्या पता है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और उसको ये भी बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, मतलब थोड़ा एडवांस नाम है और कुछ नहीं, ठीक है, स्टाइल करके बोलते हो ना, वही रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्म होता है, और एक फॉर्म होता है, मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन का दो प्रोसेस होता है, एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा, देखिए सेकंड ब्रैकेट तो देंगे क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक वैल्यूज को मैं एक्स ले लेता हूं, हर एक वैल्यूज को मैं क्या लेता हूं, एक्स, एक्स ले लेता हूं। अब बोलोगे सर एक्स क्या है, अरे एक्स कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने सब वैल्यूज का नाम कॉमनली एक्स ले लिया। अब एक्स के बाद तुम्हें सच दे देना है, सच दैट जब भी ये साइन यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग, यहां पर यू हैव इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज एक्स, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन। एक्स क्या है, एक्स का इंट्रोडक्शन आप दोगे, ठीक है। तो एक्स ये है कि एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा, 6, ठीक है, बस ब्रैकेट को क्लोज मार दो, हो गया। ये कुछ नया स्टाइल है लिखने का, है कि नहीं, ठीक है ना, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। यहां पर
1 2 3 4 5 लिख के तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यहां पर तुमने सब वैल्यूज को तुमने कॉमनली एक्स एज्यूम कर दिया और एक्स को बोल दिया, एक्स का परिचय इंट्रोडक्शन तुमने दे दिया साइड में कि एक्स का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक। अब किसी किसी पंडित लोग जो स्कॉलर लोग हैं वो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू 1 से लेके 6 तक ना, उसको देखो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग लाइक दिस। मतलब ये थोड़ा देखने में स्टाइलिश लगता है, थोड़ा एडवांस लगता है, इसलिए 11th में तो आपको इस तरह ही मिलेगा, ठीक है। साइंस में आ गए हो, दैट मींस एडवांस हो, स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, तो स्मार्ट स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा, है नहीं। तो ये स्मार्ट तरीका है लिखने का, एक्स सच दैट 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ऐसे ही इस फॉर्मेशंस को, इस ये जो फॉर्मेशंस है ना, इसको बोला जाता है सेट, सेट बिल्डर, बिल्डर बॉडी बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब ऐसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, एक सेट दिया जाएगा, नाउ जस्ट जस्ट ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट दिस सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी सेट दिया जाएगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है कि नहीं। तो सपोज एक एग्जांपल अगर लें, एक एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, सपोज ए सेट, ठीक है, ठीक है, ए सेट। अब सेट है, उसका नाम तो भी कुछ, ठीक है ना। अब नाम तो होगा, नाम के बिना तो कुछ नहीं होता है, आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, नाम ही हम लोग का परिचय होता है, पहला इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद नाम नाक मुंह ये सब आएगा, पहले तो नाम है कि नहीं। तो नाम, कोई भी सेट का नाम अगर ए है, उसको देखिए, अगर मैं सेट लिखता हूं ऐसा 1 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब बोलोगे माली इन्फिनिटी तक जाएगा क्या सेट, इस टाइप का जो सेट है उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स में, हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट ये समझ लो, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है ना, काउंटेबल नहीं है, तो इसको बोला जाता है अनकाउंटेबल सेट, दैट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये है टेबुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है। अगर मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, कौन सा कलर लूं, ब्लैक ही लूं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा उसको, नाम तो सही रहेगा, यही रहेगा, नाम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब तुम उसको शेरवानी परो या फिर क्या बोलते हो उसको, शर्ट पैंट परो, रहोगे तो तुम ही ना, ठीक है ना, वही। तो नाम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है बट नाम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, पहले क्या लूंगा, एक्स सच दैट, ये तो पहले लिख लूंगा, ये हर एक वैल्यूज एक्स का वैल्यूज है। अब एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तो जाएगा, खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलते ही जाना है, सुख दुख में चलते ही जाना है, ठीक। तो ठीक है ना। तो यहां पर देखो, एक्स सच दैट, एक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसे तो हम लोग मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वी कांट रिप्रेजेंट दिस लाइक दैट, बिकॉज इन दिस पार्ट, इन दिस रिप्रेजेंटेशन, द लोएस्ट वैल्यू and the highest value that was known, that was known, but unfortunately here the lowest value is known but the highest value god knows, infinite, ठीक है ना। सो दैट मींस इस टाइप का जो सेट होता है, जो इनफाइनाइट सेट होता है ना, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट, लेस इक्वल्स टू लेस इक्वल्स टू ऐसे देके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहां तक खत्म होगा मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे देख के ये बोलो, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, आफ्टर गेटिंग दिस नंबर,
what the concepts you have regarding these numbers? Do you have any concepts regarding these numbers? I think you have got this type of numbers collection in class 10 also. So I think it is the natural number set. Natural number set. बेंगोली में उसको बोला जाता है स्वाभाविक संख्या, हिंदी में बोला जाता है स्वाभाविक संख्या। ठीक है, ओके। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ये क्या है? हिंदी में बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दैट मीन्स ये मेरा पेन है। दिस आईज बिलोंग्स टू मी, ये मेरा आंख है। ठीक है, तो दिस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं स्टाइल। बट बिलोंग्स टू, इसको तो आप इंग्लिश में स्पेलिंग करके नहीं लिखेंगे ना, बिलोंग्स टू, है नहीं? उसके लिए एक साइन बनाया गया, वो होता है ऐसा, ये बिलोंग्स टू साइन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इट इज योर बिलोंग्स टू साइन। सेट क्लोज्ड। देखिए एक छोटा सा पार्ट देके आपने पूरा सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स कोई भी एक सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उस सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जैसे ये नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मेशन है। ठीक है, सेट्स ऑफ बुक्स, सेट्स ऑफ पेन्स, सेट्स ऑफ लिपस्टिक्स, सेट्स ऑफ बुक्स, सेट्स ऑफ मोबाइल्स, these are all well defined objects because हम लोग देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, that's why they are well defined। और सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, एक होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी बोला जा सकता है। और सेट बिल्डर फॉर्म दैट मींस ये फॉर्मेशन जो होता है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा एडवांस तरीके से लिखना। ठीक है, वही सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ऐसा कोई बात तो है नहीं यहाँ पर। तो यही होता है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेट। नाउ आई विल डिस्कस डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग सेट एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेट। ठीक है, तो इस सेट्स के ऊपर डिपेंड करके दो चीज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। एक है यहां पर एक है रिलेशन, एक है रिलेशन। ठीक है, और दूसरा फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है, जैसे नॉर्मली हम लोग रिलेशन बोलते हैं ना, कि मम्मी पापा का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, दोस्त दोस्त का रिलेशन, और भी बहुत सारा रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस होता है, ऑब्वियसली इसके लिए तो दो इंसान चाहिए, है नहीं? दो इंसान चाहिए ना रिलेशन होने के लिए। सेम टू सेम इन मैथमेटिक्स दो एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, दो अलग अलग सेट में बिलोंग करेगा। सपोज, ठीक है, मैं यहां पर एक चीज आपको बताता हूं, है सपोज ये एक ले लीजिए, एक सेट, ये अंडा, ये सेट है। ठीक है, ये जो आप सेट लिखते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये डायग्रामेटिकली, दैट मींस इन ए डायग्राम, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए सेट इन ए डायग्राम, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस अंडा। इस अंडे के अंदर देखिए क्या क्या नंबर्स हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, अच्छा जगह नहीं है, 5 तक ले लो। इसका नाम क्या है? ए सेट। ठीक है, दूसरा एक सेट लूंगा, दूसरा एक सेट लूंगा, इसका नाम मैं बी दे दूंगा। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होगा, 3 5 7, ठीक है, 9। अब अगर मैं रिलेशन बोलूं आपको, रिलेशन,
देखिए मेरे साथ, मैं टीचर हूं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे व्हाट द रिलेशन लाइज बिटवीन यू एंड मी? टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशन वो यूनिवर्सल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स होगा, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, और बाकी जो मतलब दूसरे कॉलेज में या फिर दूसरी जगह पढ़ते हैं वो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, या तो ऐसा तो नहीं है। टीचर्स मतलब यूनिवर्सल टीचर होता है, और स्टूडेंट्स मतलब भी यूनिवर्सल स्टूडेंट्स होता है कि नहीं? हर एक स्टूडेंट्स मेरा स्टूडेंट्स के जैसा ही होगा, है कि नहीं? टीचर स्टूडेंट्स रिलेशन ही रहेगा उनके साथ, है कि नहीं? तो ये जो रिलेशन है, ये जो बॉन्डिंग है आपके और मेरे बीच, इस बॉन्डिंग को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट क्या, मतलब कैसे किया जाता है? मैपिंग या फिर बॉन्डिंग वर्ड से, ठीक है? ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, आपके और मेरे बीच जो रिलेशन है, ठीक है, तो मैथमेटिकली मैं मतलब एक एलिमेंट हूं, आप स्टूडेंट दूसरा एलिमेंट है, ठीक है? तो मेरे साथ एलिमेंट आपका रिलेशन होगा, बॉन्डिंग होगा कुछ, ठीक है? तो सपोज ले लीजिए ये जो है ना, तो यहां पर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए ये जो एसेट है ना, इसको मैं टीचर्स का रिलेशन मतलब सेट ले लेता हूं, उसका नाम मैं टी दे देता हूं, टी टी, ये अच्छा होगा, ठीक है ना? टी, इसका नाम मैं टी देता हूं क्योंकि टीचर्स का सेट है। और दूसरा एक अंडा है, वो स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, उसको मैं एस नाम दे देता हूं, ठीक है? अब टीचर्स सेट में कुछ टीचर्स रहेंगे, ठीक है? सपोज अभीक सर रहेंगे, जैसे मैं, ठीक है? दूसरे कोई सपोज सपोज संजीव सर रहेंगे, संजीव सर रहेंगे। फिर उसके बाद सपोज सुधांशु सर रहेंगे, सुधांशु सर रहेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सपोज सहानी सर रहेंगे, ठीक है? तो ये जो टीचर्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलेज या फिर एक जगह से मतलब टीचर नहीं हुए, दिस टीचर्स एक्चुअली आर यूनिवर्सल टीचर्स। अब जो भी कॉलेज हो, जहां पर भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर तो टीचर ही रहेगा ना उनका, है कि नहीं? दैट मीन्स हो सकता है पर्सनली टीचर को नहीं पहचानते, ठीक है, बट आफ्टर गेटिंग द इंट्रोडक्शन वो लोग भी जानेंगे, ना ना ये तो टीचर है, ये तो टीचर है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो ये रिलेशन है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स नहीं रहता है, ये यूनिवर्सल है। तो इस सेट में मैं कुछ स्टूडेंट्स लूंगा, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, है, रहीम, रहीम, देन चार्ल्स, चार्ल्स है, देन क्या नाम लूं, और क्या बोलूं नाम है, मधुमिता, जस्ट लाइक दैट। तो ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर्स हैं, ठीक? अगर मैं बोलूं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आप रिलेशन बनाइए, तो मैंने क्या बोला था कि एक टीचर के साथ हजारों करोड़ों स्टूडेंट्स का रिलेशन बन सकता है, बॉन्डिंग बन सकता है। तो सपोज मैं अभी हूं, मेरे साथ इनका भी बॉन्डिंग होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा, और नीचे उनका भी होगा, है नहीं? हर एक स्टूडेंट्स के साथ मेरा स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो। सिमिलरली सर के साथ भी आप सबका यहाँ पर रिलेशन होगा, बॉन्डिंग होगा, रिलेशन नहीं बॉन्डिंग बोलो, बॉन्डिंग होगा। ऐसे सुधांशु सर के साथ भी आप सब लोगों का बॉन्डिंग होगा, टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग होगा। ऐसे सहानी सर के साथ भी आप सब लोगों का एक बॉन्डिंग होगा। ये जो बॉन्डिंग है, देखिए ये कोई यूनिक बॉन्डिंग नहीं है, एक टीचर के साथ हजारों लोगों का, हजारों स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग बन सकता है। तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग है उसको बोला जाता है रिलेशन। इसको क्या बोला जाता है? रिलेशन बॉन्डिंग, मैथमेटिकली, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ अगर हजारों एलिमेंट्स का बॉन्डिंग बनता है, तब उसको बोला जाता है रिलेशन बॉन्डिंग, रिलेशन मैपिंग, व्हाटएवर,
ठीक है। और फंक्शन क्या है रे भाई, फंक्शन में भी दो अलग अलग सेट होगा, फंक्शन में भी दो अलग अलग सेट होगा, ठीक है। तो यहां पर सपोज मैं, फिर संजीव सर, सुधांशु सर, सहानी सर, ठीक है, मतलब SHA, ठीक है। और यहां पर राम, श्याम, रहीम और मधुमिता, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब दोनों सेट में देखिए दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग टीचर स्टूडेंट्स का कलेक्शंस हैं। अगर मैं आपको बोलूं बेस्ट फेवरेट स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट आप कलेक्शन करिए, फेवरेट स्टूडेंट आप कलेक्शन करिए, ठीक है। तो जब टीचर्स को बोला जाता है कि एक क्लास में आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो पर्टिकुलरली वो टीचर जो है ना एक ही स्टूडेंट का नाम लेंगे, ठीक है, फेवरेट स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट का नाम लेंगे। अब एक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं नहीं, मेरा जो है, मैं यहाँ पर शाम जो है मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तो सानी सर भी बोल रहे ना 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 मेरे भी शाम जो है ना फेवरेट स्टूडेंट है। सुधांशु सर बोल रहे नहीं 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 मेरा जो है ना ये राम जो है ना फेवरेट स्टूडेंट है। और सहानी सर बोल रहे नहीं मेरा तो ये जो है ना मधुमिता फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हर एक टीचर का इंडिविजुअल चॉइस होता है, इंडिविजुअल फेवरेट स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, बट एक ही होता है, फेवरेट स्टूडेंट एक से ज्यादा नहीं होता है। यहां पर देखिए एक टीचर के साथ एक ही स्टूडेंट का रिलेशन बना, एक टीचर के साथ एक ही स्टूडेंट का रिलेशन बना, ठीक है। हर जगह देखिए टीचर एक, स्टूडेंट भी एक, टीचर एक, स्टूडेंट भी एक, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है उसको बोला जाता है फंक्शन बॉन्डिंग, फंक्शन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि रिलेशन बॉन्डिंग और फंक्शन बॉन्डिंग दोनों में सेट्स चाहिए, विदाउट यूजिंग सेट्स यू कांट डिफाइन दिस रिलेशन एंड दिस फंक्शन। So at first we need to consider some sets, and on that basis, on the sets which are given, we will have to construct some mapping. Two types of mappings are there: relation mapping, function mapping. Now what is the basic difference this relation mapping and the function mapping? Relation mapping is universe, ठीक है, और फंक्शन मैपिंग इज व्हाट, यूनिक, यूनिक एक रहेगा, ठीक है। जैसे रिलेशन में मैंने यूनिवर्सल रिलेशंस बोला था, मतलब एक टीचर के साथ हजारों स्टूडेंट्स का रिलेशन बनेगा, इसलिए ये कॉमन मैपिंग बन गया, रिलेशन मैपिंग बन गया, ठीक है। और सेकंड केस में मैंने क्या बोला है, फेवरेट स्टूडेंट का, फेवरेट दैट मींस यूनिकनेस आ गया वहां पर, एक क्लास में एक ही फेवरेट स्टूडेंट होता है ना भाई, क्लास में कभी भी एक से ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट किसी टीचर का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, टीचर जो है एक्सप्रेस नहीं करता है, बट उसके मन में ये है कि ये बंदा जो है मेरा हर क्लास जो है ना, मेरा हर होमवर्क, हर सब कुछ मुझे टाइम टू टाइम देता है, ठीक है। एक ना एक तो स्टूडेंट होगा क्लास में जो एक टीचर का जो है ना फेवरेट होता है, मनी मन फेवरेट होता है, बट आई थिंक दिस टीचर may not express this favoritism in the classroom because all the students are same, all the students are equal to me, but मनी मन मैं उसको थोड़ा, नहीं नहीं ये जो बंदा है बहुत मेरा क्लास को जो है ना बहुत अटेंटिवली सुनता है, हाँ बहुत एक्चुअली होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट करता है, सब कुछ सबमिट करता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है ना मेरा फेवरेट है, ठीक है। हम लोग जब टीचर्स के बीच का मतलब डिस्कशन होता है ना, तब ऐसे बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। जैसे कोई भी स्टूडेंट का फेवरेट टीचर होता है ना, ऐसे टीचर का भी फेवरेट स्टूडेंट होता है। तो जब ये फेवरेट वर्ड में यूज करूंगा देन यूनिकनेस आ गया यहाँ पर। दैट मींस यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर कि एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का ही रिलेशन बना, एक से ज्यादा स्टूडेंट का रिलेशन नहीं बना, ठीक। तो इस टाइप का जो रिलेशन, इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग को बोला जाता है फंक्शन बॉन्डिंग, ठीक। तो यही जो होता है ना ये सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर्स में
ये सब लेके ही आपको डिस्कस करना है. So in this lecture, for this basic discussion, I had prepared this video. Okay, so in the next lecture, we will start the different concepts and different things regarding the set, relation, and function. We will discuss different questions and the solutions as well from the set, relation, and function chapter. So in this lecture, that will be enough, and just it is the basic concept, and try to share this lectures to each and every students, each and every friends, and the classmates as well. So thank you very much, and if you like my videos, then please subscribe, like, and share my channel. Thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.